Principles of trapezoidal and Simpson's rule. So first, before starting the example, I am giving you review for your trapezoidal rule formula. What was your trapezoidal rule? What was the formula to evaluate trapezoidal rule and to use trapezoidal rule? If you have integration from A to B, fx dx, then what was your formula? H by 2 function value at A plus function value at B. So otherwise you can also say as this is your x naught and this was your x1. So this is function value at x naught and this is function value at x1. Why this is trapezoidal formula? That I have already told you, that if we fit so if you have this like this function, suppose this is function, this I am taking x naught point and this is I am taking x1 point. So what was your trapezoidal formula? That you fit a linear curve, that means you fit a straight line which will evaluate your integral. ये आपकी क्या होती है? फंक्शन की वैल्यू a पे, ये होती है फंक्शन की वैल्यू b पे, और this you can say as x naught and x1. So you are fitting a straight line and this becomes your trapezium. This is your h, or if you reverse this position, so this becomes your so this is your trapezium. This is parallel side and this is your height. So you have sum of parallel side and divided it by 2. Next, what was the error bound in this? Error bound क्या थी? What was E? E आपका क्या था? minus h cube by 12 function second derivative at some point C. When you have to evaluate the maximum error, तब आप हमेशा क्या निकालोगे? You will take the modulus of this thing, and maximum value when your x lying between your A and B, like the previous which we do. So what was the Simpson's rule? Simpsons, we have done two types. Simpsons 1/3 rule. 1/3 rule क्या था आपका? If you have integration from A to B, fx dx, what was the formula? H by 3 f of A plus 4 times function's value at A plus B by 2 plus function's value at B. So this is nothing, but this becomes your x naught. This is becoming your x naught plus h, and B is your x1. So in this case, h will be your B minus A by 2. This was your Simpson's 1/3 rule. And what was the error bound in this? Minus h raised to the power 5 by 90. Function's fourth derivative at some point C. Again, if you have to find the error bound maximum, तो क्या करोगे? इसका मॉडुलस लोगे, इसका मॉडुलस लोगे और मैक्सिमम किसका निकाल दोगे? इसका, and your x should belongs to A, B. What was your 3/8 rule? In the 3/8 rule, so integration f of x dx, what was your formula? 3h by 8 function's value at x naught या A plus 3 times function's value at x1 plus function's value at x2 plus, here your again x naught is your A and x1 is your A plus h,
x2 is your a plus 2h, x3 is your a plus 3h, and your h here is b minus a by 3. Is this clear? So now we are doing the examples for this. So find approximate value of I integral is your a 0 to 1, 0 to 1, 1 upon 1 plus x dx, using, first you have to use your trapezoidal rule. Second, Simpson's 1/3. Third is your Simpson's 3/8 rule. And also calculate the error bounds. So if we are using firstly your trapezoidal rule, so if we are using your trapezoidal rule and we have to integrate 0 to 1 dx 1 upon 1 plus x, क्या है trapezoidal rule? क्या कहता है? h by 2. h क्या होता है trapezoidal rule में? b minus a. So you have 1 minus 0, that is your h by 2. Function's value at x naught plus function's value at x1. So you have 1 by 2. h b minus a होता है trapezoidal में. You have only 2 points over here. Trapezoidal में this h is your b minus a, because you have taken only 2 points and the difference between 2 points will be your b minus a. So you have function value at 0, that means 1 upon 1 plus 0. Function's value at 1, that means 1 upon 1 plus 1. So you have 1 by 2, 1 plus 1 by 2. So you will get your answer. I think this is 0.75. So you have 0.75 answer. Is this clear? Yes or no? Easy? Fine. Next, error bound. Error bound in trapezoidal. What was your error bound? Minus h cube by 12 functions second derivative at c point. So if we are taking the maximum error, we will find the maximum when your x lies between 0 and 1. So what will be this value? H is your 1 minus 0. So you have 1 minus 0. If you do the cube, negative sign, divide by 12. And this is your maximum. And your x should lie between 0 and 1. Function क्या है आपका? 1 upon 1 plus x. So इसका second derivative निकाल लोगे. What will be the second derivative? This will be 1 upon 1 plus x. So your second derivative is coming out to be your 2 upon 1 plus x whole cube. Fine. So this value, ignoring the negative sign because we are in the modulus, this will be 1 by 12. The maximum x belongs to 0 and 1. So you have this value as 2 upon, you are finding at some constant. So this will be your 0 lying between, x is lying between. So this you are finding at some constant 1 plus c whole cube. So this will be your 2 upon 1 plus c whole cube. इसकी वैल्यू मैक्सिमम 0 और 1 पे कहाँ पे आएगी? 0 पे. So you will have 1 upon 12 because x is in the denominator. So this you have 2 upon 1 plus 0. So you have maximum error in this is 1 by 6. Is this clear? Yes or no? Now you can see from here,
if I tell you the find the absolute error in this case, absolute error क्या होता है? Exact value minus approximated value. यहां से आप अपना एग्जैक्ट आंसर भी तो निकाल सकते हो. इसका आंसर एग्जैक्ट क्या है? log 1 plus x 0 to 1. इसका जो एग्जैक्ट आंसर दिस इज कमिंग गिवन एज दिस इज 0.693147. फाइन. So if I tell you to find the absolute error, तो क्या होगा? 0.693147 minus your approximated value आपने कितनी निकाली है? 0.75. Is this clear? So this is your absolute error and this is your error bound. Error bound जो हमेशा आपका error आएगा वो हमेशा 1/6 से ही छोटा रहेगा. Fine. Next, if we apply the Simpson's 1/3 rule. 1/3 rule का क्या formula है? That if I have to integrate a to b fx dx, what will be my formula? I have h by 3. H here this is. So this is my 0 to 1 and f of x dx is my 1 upon 1 plus x. This is my dx. So what is formula? H by 3. What in this case is my h? B minus a by 2. Now here this is 2. So this will be 1 by 2 upon 3. Function's value at x naught. X naught is your 0. Function's value at x1 into 4. Function's value at x1. x1 आपका हमेशा क्या आएगा? a plus h. a यहाँ पे क्या है? 0. h आपका क्या है? 1 by 2. So this value is your 1 by 2 plus function's value at 1. Is this clear? Here it will always be your a plus b by 2. क्यों? क्योंकि middle वाली value है. h आपका अगर b minus a by 2 ऐड करोगे this will be a plus b by 2. So this will be your 1/6. function की value 0 पे क्या होगी? plus 4 times function की value half पे 1 upon 1 plus 2. just you will substitute x as 1 by 2. यहाँ पे क्या होगा? 1 upon function की value 1 पे. If you this evaluate, this is coming out to be your 0.69444. Fine. Again, error bound in your Simpson's 1/3 rule. क्या error bound? minus h5 by 90. Function's fourth derivative at some point c, and you are finding the maximum error. H is your here 1 by 1 minus 0 by 2 raised to the power 5 divided by 90, and this you will take the maximum x should lie between 0 and 1. Now function's fourth derivative is coming out to be your 24 1 plus c raised to the power 5. क्या होगा? The error will be less than. ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में आ जाएगा. So this is coming out to be your 1 by 2880. And this value, इसकी maximum value कहाँ आएगी? C क्या होगा जब इसकी maximum value आएगी? 0. So this is 24 upon 1. So this is giving me answer as 0.008333. Is this clear? So now you can see कि आपने अपने ट्रेपेजॉइडल में 2 पॉइंट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी थी, यहाँ आपने 3 पॉइंट्स लेके पैराबोला ड्रॉ करा था, तो आपका एरर उतना ही रिड्यूस होता जा रहा है. ठीक है. इन दिस केस यू कैन ऑल्सो फाउंड योर एब्सोल्यूट एरर. क्या होगा? x माइनस एक्स स्टार. x आपका क्या है? 0 पॉइंट दिस वैल्यू 693147 माइनस 0.69444. So the absolute error you can also find. Third, if I have to use Simpson's 3/8 rule. Simpson's 3/8 rule क्या कह रहा है? That if I have to integrate 0 to 1 1 upon 1 plus x dx, so what will be my answer? What is formula? 3h by 8. h यहाँ पे क्या होगा? b minus a by 3. So 1 minus 0 by
3. So you have h over here is 3 into, this is 3 into h is your this by 8. Function's value at x naught. X naught is your 0 plus 3 times function's value at 0 plus h. 3 times function's value at 0 plus 2h plus function's value at 0 plus 3h करोगे तो वो क्या आएगा आपका 1. निकाल लोगे आंसर. So this is coming out to be your 0.69375. एरर बाउंड यहाँ पे क्या होगा, क्या था एरर बाउंड सिम्पसन्स 3/8 का, माइनस, you have error bound is here is minus 3 by 80 h raised to the power 5. Function's fourth derivative at some constant c. So if you have to find the maximum, what you will take, minus 3 by 80. h आपका यहाँ पे कितना है 1 minus 0 by 3, that is your raised to the power 5, and you take the maximum value, x will lie between 1 and 0. This you have already calculated. This is coming out to be 24. 1 plus c raised to the power 5. So this is giving me answer as 0.003704. Is it clear? In this case, you can also, because you can calculate the exact answer. So this will be your x minus x star. Is this clear? Easy to apply. Simpson's 1/3 rule. Simpson's 3. Doing, then we will start new topic. Next, the example is given as the solution of the integration 1 to 2 fx dx is 4 by trapezoidal rule and 8 by Simpson's 1/3 rule. Determine value of function's value at 1.5. So now you have given that the solution of this thing, I do not know the function. अगर function पता ही होता तो मैं क्या कर सकती थी, सीधा function की value 1.5 पे निकाल सकती थी. But मुझे क्या दिया हुआ है कि आंसर मेरा 4 है. किससे? ट्रेपेजॉइडल रूल से. 8 आंसर है किससे? सिम्पसन से. So if you use your definition by trapezoidal rule, if you have to evaluate 1 to 2 fx dx, this is given you as 4. क्या होता है इसका आंसर? h by 2. Here what will be your h? 2 minus 1. This is your h by 2. Function's value at 1 plus function value at 2. This is given you answer as 4. So here this will be 1 by 2. So you have function value of 1 plus function value at 2. This is giving me answer as 8. So this is my first equation. Secondly, what is given to you that 1 to 2 fx dx, if I integrate it with Simpson's rule, what is my Simpson's rule? H by 3. H is my 2 minus 1 by 3 divided by, sorry. So you have h over here is b minus a.
that is 2 minus 1 upon 2 divided it by 3 function's value at 1 plus 4 times function's value at a plus b by 2. यही होता है, that is 1 plus 2 by 2 and plus function's value at 2. This is giving me answer as 8. So this thing, what it will give you 1 by 2, this is 1 by 6. Function's value at 1 plus function's value at 2. What is this answer? 8. So I can use this. This is my 8 plus 4 times 1 plus 2. This will be my divide by 2 function's value at 1.5. So this is giving you answer as 8. Now if you solve it, this will be 4 times function's value at 1.5. This 48 minus 8. So the function's value at 1.5 will be 10. Easy. Clear to all? Yes or no? Fine. Simpson's rule, trapezoidal 1/3, Simpson's 1/3, Simpson's 3/8 and trapezoidal. Clear to all? Any doubt? So like we have seen in this trapezoidal Simpson, now we are doing composite trapezoidal rule. कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल हमने सिंपल इसमें क्या किया कि अगर मेरा फंक्शन ऐसा है कुछ, तो मैंने क्या करा, एक पॉइंट मुझे इसमें इंटेग्रेट करना था अपना फंक्शन. दिस इज माय पॉइंट x0 और आई कैन से दिस इज माय a एंड दिस इज माय x1, दिस आई टेक एज b. तो मैंने ट्रेपेजॉइडल में क्या किया कि आई हैव फिटेड अ लीनियर कर्व, दैट मींस लाइन इन दिस. तो आप यहां से देख सकते हो कि आपका एरर कितना ज्यादा आ रहा है. ये आपका एरर है ना इन पॉइंट्स पे. तो व्हाट वी कैन डू कि अगर हम अपने पूरे इंटरवल ए बी को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दें, कि मैंने ये एक्स, यहां से मैंने ये एक्स एन कह दिया कि मेरा लास्ट है, मैंने क्या कर दिया, दिस इफ आई टेक x1 इज इक्वल टू सम पॉइंट, दिस आई एम टेकिंग x2, दिस आई एम टेकिंग x3. तो अगर आप यहां से देखो दिस, तो आपका एरर बहुत रिड्यूस नहीं हो गया. दिस इज योर फंक्शन वैल्यू एट x3. तो यहाँ पे एरर आपका कितना रहा, बहुत कम. दिस इज योर एरर. यहाँ पे तो ऑलमोस्ट ही 0 हो गया. सो व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग, वी आर डिवाइडिंग द होल इंटरवल ए बी इनटू n sub intervals. Is this clear? Yes or no? Fine. So we are dividing here. Divide the interval A, B into n sub intervals. और सब इंटरवल्स आप कैसे ले रहे हो, x0, x1, x1, x2 एंड xn minus 1 एंड xn. यही होगा आपका इंटरवल. अगर आप इंटरवल ऐसे तोड़ रहे हो तो आपका ये हमेशा रिलेशन ऐसे सेटिस्फाई होगा. फाइन. जो आपका ये वाला पॉइंट है ये उससे बड़ा ही होना चाहिए, x2 पॉइंट, या बड़ा या छोटा होना चाहिए जब तक आप तोड़ रहे हो. इज दिस क्लियर दैट वी आर ब्रेकिंग, वी आर डिवाइडिंग द होल इंटरवल ए बी इंटू n इंटरवल्स. तो अगर आप n इंटरवल्स ले रहे हो एंड वी आर टेकिंग द डिफरेंस बिटवीन द इंटरवल इज सेम, इसका मतलब x0 माइनस x1 भी h रहे, x2 माइनस x1 भी h रहे, xn माइनस 1 भी कितना रहे, h. तो आपका h बेसिकली यहां से क्या हो जाएगा, दैट b माइनस a बाय
the number of intervals you are dividing. Is this clear? Yes or no? Here you are taking कि जितने इंटरवल में मैं ब्रेक कर रही हूं, तो मतलब क्या है कि यहाँ का डिफरेंस भी मेरा कितना रहे, h, इनका गैप भी कितना रहे, h, इनका गैप भी कितना रहे, h. तो मतलब टोटल इंटरवल्स क्या हो जाएंगे, h क्या होगा, b माइनस a बाय n. सो दिस इज वेरी इजी. नाउ आपको पता है कि आपने इंटीग्रेशन कर ली a से b fx dx. अब आपने कैसे तोड़ दिया अपने इंटरवल्स को, ट्रेपेजॉइडल के लिए क्या करा, x0 x1 ले लिया, फिर क्या करा, x1 x2 ले लिया, फिर क्या करा, x2 x3 ले लिया. ऐसे ही कहां तक इंटरवल्स को तोड़ लिया, लास्ट तक. fx dx तो सब में ही आएगा, यू नो कि आपको इंटेग्रेट इसको ही करना है. एंड यू हैव डिवाइडेड द इंटरवल इनटू n पार्ट्स. इसका आंसर आपको पता नहीं ट्रेपेजॉइडल रूल से कितना. यहाँ पे ट्रेपेजॉइडल रूल लगाओ, क्या होगा, क्या कहता है ट्रेपेजॉइडल रूल, h/2 करो, फंक्शन की वैल्यू x0 पे निकालो, फंक्शन की वैल्यू किस पे निकालो, x1 पे. यहाँ पे लगाओगे ट्रेपेजॉइडल रूल तो क्या होगा, h/2 फंक्शन की वैल्यू किस पे निकालोगे, x1 पे, फंक्शन की वैल्यू किस पे निकालोगे, x2 पे, प्लस यहाँ पे लगाओ h/2 फंक्शन की वैल्यू किस पे निकालोगे, x2 पे, प्लस फंक्शन की वैल्यू कब तक निकालोगे, प्लस h/2 फंक्शन की वैल्यू xn-1 पे फंक्शन की वैल्यू. क्लियर है ये चीज, यस और नो? जब आपने निकाला था तो इसमें एरर आ रहा था ना, कितना था एरर, -h³/12 फंक्शन सेकंड डेरिवेटिव एट सम कांस्टेंट. फर्स्ट वाले के लिए निकाल रहे हो तो मैं c1 कांस्टेंट लेके चल रही हूँ, ठीक है. सेकंड में निकाल रहे हो तो भी यही एरर रहेगा, सिर्फ कांस्टेंट ही तो चेंज होंगे. सो यहाँ पे एरर कितना होगा, -h³/12 फंक्शन सेकंड डेरिवेटिव एट c3 and so on, -h³/12 फंक्शन सेकंड डेरिवेटिव एट सम कांस्टेंट, आई एम टेकिंग cn. ये चीज क्लियर है? ये मैंने कहा फर्स्ट वाले में एरर था, ये सेकंड वाले में एरर, ये थर्ड वाले में, ये लास्ट वाले में एरर. यहाँ तक क्लियर है सबको? फाइन. नेक्स्ट, इफ यू सी ओवर हियर, h/2 सबसे कॉमन निकल रहा है, कैन आई टेक h/2 कॉमन? फाइन. यहाँ पे देखो, यू आर टेकिंग दिस थिंग, फंक्शंस वैल्यू एट x0, फंक्शन की वैल्यू xn पे. ये है सिर्फ कितनी बार आ रहे हैं, वन टाइम. सो दिस आई एम टेकिंग x0 प्लस fxn. इज दिस क्लियर? प्लस ये वाली वैल्यू कितनी बार आई, टू टाइम्स. ये वाली वैल्यू कितनी बार आएगी, वैसे ही x3 कितनी बार आएगा, xn-1 भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा. So you will have 2 times summation I is equal to 1 to n functions value at. Is this clear? फॉर्मूला बन गया, ये आपका कंपोजिट का फॉर्मूला बन गया. ठीक है, मुश्किल था? नो. इसका एरर बाउंड थोड़ा देख लेना कि कैसे निकालना है. एरर अब इसमें कितना होगा, दिस इज माय -h³/12 सब में से आ रहा है. summation I is equal to 1 to n फंक्शन सेकंड डेरिवेटिव एट सम कांस्टेंट ci. जैसे हमने पीस वाइज तो मतलब क्या कहना चाह रही हूँ कि जैसे मैंने कहा यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट पे आएगी ना, दिस इज योर मैक्सिमम ऑफ फंक्शन. ठीक है, f ऑफ x यहाँ पे है, बट इस इंटरवल की मैं मैक्सिमम वैल्यू चेक करूं तो वो कहाँ आ रही है,
इस पॉइंट पे, यहां चेक करूं तो वो यहाँ इस इंटरवल पे चेक करूं, इफ आई चेक ऑन दिस इंटरवल, वो कहाँ आ रही है, यहाँ पॉइंट पे, ठीक है। इसका मतलब आपकी मैक्सिमम वैल्यू ही चेंज हो रही है। दिस इज क्लियर। आप कितने इंटरवल के लिए ऐसे चेक करोगे? सो व्हाट वी आर डूइंग समथिंग कि हम यूज करेंगे अपनी जो आप एक्सट्रीम वैल्यूज की थ्योरम यूज करते हो, ठीक है। नाउ सिंस जो आपका फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है, यही आप लेके चलते हो ना, एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी निकालोगे, पॉलिनोमियल्स है, दैट विल बी कॉन्टिन्यूस, सेकंड डेरिवेटिव भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। जो आपका फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है किस इंटरवल पे, सेकंड टाइम्स कॉन्टिन्यूस है इस इंटरवल पे, ए बी पे, ठीक है। सो बाय एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, ये मैं बता रही हूँ आपको क्या लिख रही हूँ, दिस इज आई एम टेकिंग। जो आपके यहाँ से कांस्टेंट्स निकल रहे हैं, सी दिस फिगर, जो यहाँ से आपके सीमा निकलेंगे ऑटोमेटिकली वो लाई तो फंक्शन के मैक्सिमम और मिनिमम में लाई करेंगे, कहीं और लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे आपने इंटरवल ले लिया, जैसे यहाँ पे आपने क्या लिया, दिस यू हैव टेकन एक्स नॉट पॉइंट, और यहाँ पे आपने अपना कर्व फिट किया एक्स नॉट और एक्स वन में, जो इसका मिनिमम इसका मैक्सिमम यहाँ पे आ रहा है, और मिनिमम किस पॉइंट पे आ रहा है, इसका। तो जो C1 कांस्टेंट होएगा वो फंक्शन के मैक्सिमम और मिनिमम में ही लाई करेगा कि कहीं और लाई करेगा, उसी में ही लाई करेगा। सो दिस आई हैव रिटन एक्चुअली सो दैट द कांस्टेंट्स वैल्यू किस में लाई करेगी, फंक्शन के मिनिमम में और फंक्शन के मैक्सिमम में, इससे बाहर तो नहीं जाएगी, बिकॉज यू आर टेकिंग फंक्शन एफ ऑफ एक्स और आप इंटेग्रेट भी किस में कर रहे हो, एक बाउंडेड इंटरवल में, जो ए और बी बाउंडेड है, फाइन। तो जो इसके सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू, मतलब इसके एक्चुअली दिस विल बी 2 सेकंड डेरिवेटिव ओवर हियर दिस, बिकॉज मैं सेकंड डेरिवेटिव की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो जो फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट की निकल रही होगी वो फंक्शन के उसी फंक्शन के मैक्सिमम या मिनिमम में लाई करेगी। इज दिस क्लियर, yes or no? So I can sum up on summing, मैंने क्या किया, अगर मैं सारी इनइक्वालिटीज को सम अप भी कर दूं, summation I is equal to 1 to n functions derivative second derivative at ci, and this is I take I is equal to 1 to n, and this I take summation I is equal to 1 to n minimum x b and a। ये पॉइंट क्लियर है सबको, yes और no? जो सी आई कॉन्स्टेंट है वो आपके वो फंक्शन के मिनिमम और मैक्सिमम में ही होंगे, इससे बाहर तो नहीं जा सकते। अगर मैं उनको सम भी कर दूं तो भी वो फंक्शन में ही रहेंगे। यहाँ पे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकाल रही हूँ, मिनिमम वैल्यू ज्यादा हो सकती है, एक ही होगी, चेंज तो नहीं होगी। ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा क्या इंटरवल्स पे डिपेंड करेगा, नो। तो दिस इज माई कॉन्स्टेंट। अगर आप कॉन्स्टेंट टर्म को n टाइम्स ऐड करोगे तो क्या आएगा, n टाइम्स नहीं हो जाएगा, a को आप n टाइम्स ऐड करो तो ये क्या हो जाएगा, n into a, fine। So this will be my n into minimum x belonging to your b to a functions, this thing, and this, because this is depending on constants, this will be n maximum function second derivative at x. Is this clear, yes or no? Fine। So if I'll divide this by n, तो ये क्या हो जाएगा, minimum x is belonging to your a to b functions derivative at x, this will be your 1 by n
n इज योर पॉजिटिव क्वांटिटी, उससे डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. फाइन. नंबर ऑफ इंटरवल्स आर योर पॉजिटिव क्वांटिटी. अब आप कह रहे हो कि कोई ना कोई ऐसा कांस्टेंट होगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, द सेंटर वन. यही आप सैंडविच कहते हो. So by this also your intermediate value theorem says, so by intermediate value theorem there exists a point C such that functions this derivative, this is equal to your 1 by n summation I is equal to 1 to n functions derivative at Ci. ये चीज क्लियर है? Yes or no? यहां से आपकी समेशन I is equal to 1 to n Ci, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? Yes or no? मैंने n को वहां मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, यही चीज हुई. आपको इसी की वैल्यू नहीं निकालनी थी. इज दिस क्लियर? तो ये आपका आंसर कितना आ गया? दिस इज इक्वल टू योर माइनस एच क्यूब बाय 12. इसकी वैल्यू आपने कितनी निकाली है? n टाइम्स फंक्शन सेकेंड डेरिवेटिव एट सम कांस्टेंट c. ठीक है. n आपका क्या है? h आपका क्या होता है? b माइनस ए बाय n. n यहाँ पे कितना हो जाएगा? b माइनस ए बाय h. तो यहां से मेरी ये वाली वैल्यू जो एक्चुअली आपकी आ रही है दैट इज योर माइनस h क्यूब, नो h square, this will be minus h square क्योंकि 1h will be cut out, this will be by 12 b minus a into functions derivative at second derivative at c. Is this सिम्पसन्स रूल आप खुद बनाओगे? क्या होगा? वी विल डू दिस. क्या होगा मेरे को बताओ? कंपोजिट सिम्पसन्स 1/3 रूल. पहले वाले कंपोजिट सिम्पसन्स 1/3 रूल में आपने क्या किया कि अगर आपके पास कोई फंक्शन होता था, आप क्या लेते थे? 2 पॉइंट्स ले लेते थे फंक्शन में. दिस आई एम टेकिंग x नॉट, दिस आई एम टेकिंग, सपोज दिस आई एम टेकिंग x1, दिस आई एम टेकिंग x2. तो आप क्या करते थे? अपना क्या फिट करते थे? यू फिट योर सेकेंड डिग्री पैराबोला. यही करते थे. इसको एडजस्ट कर लेना थोड़ा प्लीज. सो दिस इफ आई एम टेकिंग एट दिस पॉइंट x1, तो आप क्या कर रहे थे? अपना पैराबोला फिट कर रहे थे. तो वही पैराबोला क्या है कि मैं अगर छोटे छोटे पॉइंट्स पे फिट करूं तो मेरा एरर हमेशा क्या हो जाएगा? रिड्यूस. इन दिस ऑल्सो वी आर डिवाइडिंग आवर होल इंटरवल ए बी into n sub intervals. Fine.
सब इंटरवल्स का रूल वही रहेगा कि आपका x0 जो है वो x1 से छोटा होगा, x1 x2 से, xn से छोटा होगा। इज दिस क्लियर? यहाँ पे थोड़ा सा फर्क आएगा। आपका क्या कहता है दैट इफ आई हैव टू इंटेग्रेट a to b fx dx, यहाँ पे जो मैं ब्रेकिंग कर रही थी कितने पॉइंट्स ले रही थी? 3 पॉइंट्स। दैट मीन्स आई हैव टू इंटेग्रेट फ्रॉम x0 to x2, x0 x1 एंड x2, 3 पॉइंट्स लेते थे ना वहां पे, fx dx। अगला इंटरवल क्या होगा? x2 to x4, x2 x3 एंड x4। अगला इंटरवल क्या होगा? x4 to x6 fx dx अप टू सो ऑन। लास्ट इंटरवल क्या हो जाएगा? x to xn। अब इसका आंसर आपको पता है, फर्स्ट वाले का आंसर कितना निकाला था? h/3 फंक्शन की वैल्यू x0 पे प्लस 4 टाइम्स फंक्शन की वैल्यू x1 पे प्लस fx2। अगला इंटेग्रल क्या होगा? सेम, चेंज तो कराओ। h/3 फंक्शन की वैल्यू x2 पे प्लस 4 टाइम्स फंक्शन की वैल्यू x3 पे प्लस फंक्शन की वैल्यू, नेक्स्ट इंटरवल क्या होगा? h/3 फंक्शन की वैल्यू x4 प्लस 4 टाइम्स फंक्शन की वैल्यू x5 प्लस फंक्शन की वैल्यू x6 पे अप टू सो ऑन। लास्ट क्या हो जाएगा? h/3 फंक्शन की वैल्यू xn माइनस 2 पे प्लस 4 टाइम्स फंक्शन की वैल्यू xn माइनस 1 पे प्लस फंक्शन की वैल्यू xn पे। इज दिस क्लियर? द सेम यहाँ पे कुछ एरर था, यहाँ पे कितना एरर कह रहा था वो? माइनस h⁻5/90 फंक्शंस फोर्थ डेरिवेटिव पहले में है तो मैंने c1 ले लिया, माइनस यहाँ पे एरर कितना होगा? h5/90 फंक्शन फोर्थ डेरिवेटिव एट c2। यहाँ पे एरर कितना होगा? माइनस h5/90 फंक्शन फोर्थ डेरिवेटिव एट c3। यहाँ पे माइनस h⁻590 फंक्शन डेरिवेटिव एट cn कर दिया। यहाँ पे आपका h/3 यू कैन टेक कॉमन। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि दिस x0 एंड दिस xn इज कमिंग ओनली वन टाइम। ये वाली क्वांटिटी x2 x2 2 टाइम्स, x4 x4 इवन वाली क्या हो रही है? 2 टाइम्स। 2 समेशन i इज इक्वल टू 1। ठीक है, कहां तक लेके जाऊंगी? ठीक है, प्लस ये वाली क्वांटिटी 4 टाइम्स ऑलरेडी है, ये एक ही बार आ रही है। समेशन i इज इक्वल टू 1 x2। ठीक है, n बाय कहां तक जाएगी? n/2 माइनस 1 तक आई थिंक। सो दिस विल बी आई थिंक n/2 माइनस 1। यहाँ पे आएगा ना आपका लास्ट वाला xn माइनस 2। सो क्या हो जाएगा? ये 1 तक ही जानी है। इज दिस क्लियर? सो दिस फॉर्मूला इज फॉर योर कंपोजिट सिम्पसन्स 1/3 रूल। आपको कंपोजिट फॉर्मूला the point from x0। ठीक है, तभी आपका इवन और ऑड x1 से करोगे तो वो चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने ये एरर करा, माइनस एरर टर्म यहाँ पे क्या होगी? h⁻5/90
पहले वाला इंटरवल 3 में तोड़ा। n by 2 इज दिस क्लियर? ठीक है, मैं ऊपर वाले में ही चेंज करके दिखा रही हूँ, जब आप नोट्स देखोगे तो चेक कर लेना। यहाँ पे जब आप थ्योरम लगाओगे ये सब कुछ वही चलेगा, फर्क क्या आएगा, सिर्फ यहाँ पे जो सम आप करोगे वो क्या लेके चलोगे, n by 2। I am using blue marker for this. I is equal to n by 2. This is for your Simpsons. Fine. Same. यहाँ पे क्या आ जाएगा, n by 2। सम कर रहे हो ना n by 2 टाइम्स, इसको मैंने a को n by 2 टाइम्स ऐड करना है, तो क्या होगा, n by 2 into a नहीं होगा। So this is my n by 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 by n। Is this clear? Yes or no? समझ आ रहा है? नव्या क्या बोला है, क्यों? इज दिस क्लियर, समिंग क्लियर? सो यहाँ पे जो आपका एरर फॉर्मूला बन रहा है सब कुछ वही चलेगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सो इट विल चेंज, दिस इज एज योर 2 by n, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका n by 2। दिस इज फॉर योर सिम्पसन्स 1/3 एंड दिस इज ऑल्सो फॉर योर सिम्पसन्स 1/3 फॉर योर। तो ये जो आपका बना फॉर्मूला, यहाँ पे एरर क्वांटिटी ये कितनी हो जाएगी, -h5/90। यहां से आपका आंसर कितना आया, कितना निकाला आपने, n by 2, यही क्वांटिटी निकाली है। सो दिस विल बी योर n by 2 functions value, fourth derivative at some constant c, because this n is your b minus a by h, so this will be h raised to the power 4 by, this is coming out to be your answer 1/80 into b minus a functions fourth derivative at c, and this c is belonging to your a to b। ये आपका फॉर्मूला आपको अगर आपको मेंशन नहीं हो for your known component, अगर आपको नहीं